पंजाब का विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। बजट सत्र है। कांग्रेस भी इस बार पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने के लिए उतरी है क्योंकि विपक्ष का सबसे अहम रोल। तो हमारे साथ बात करने के लिए प्रगट सिंह मौजूद है। सर, ਅੱਡ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰ ਬੜੀ ਤਲਖੀ ਔਰ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਈ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਰਾਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਬਈ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। लेकिन सर अगर कांग्रेस की गल की जाए, दिल्ली के लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, कहा जा रहा है कि हुण एकजुट होकर एक मंच दे एक रहना है। लगता है कांग्रेस होना है नहीं सर, सब चीज़ें चलिए नहीं कोई ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਲਈ, ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। लेकिन भूपेश बघेल ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ बैठक ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਲਖੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। 2027 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਣਗੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਹੀ एकजुट है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ठीक है सर, तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए प्रगट सिंह। कांग्रेस की तरफ से अब इस बार विपक्ष को लेकर जो है सवाल जो खड़े किए गए थे और कांग्रेस हाईकमान ने इस बार सख्ती के साथ ये कहा था कि इस बार अगर कांग्रेस उस रूप में या उसमें नज़र नहीं आती है तो सख्त कार्रवाई कांग्रेस पे की जाएगी। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस बार जब बजट सत्र शुरू होता है तो कांग्रेस के किस तरीके की चीज़ें जो हैं अलग अलग नज़र आती है। सबसे पहले तो जहां एक तरफ कांग्रेस बजट सत्र में पहुंचती है तो वो लगातार सरकार को अलग अलग मुद्दों पे घेरती है और एक गर्मजोशी के साथ आती है। आपको पहले वो तस्वीर दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर, कांग्रेस के सांसद आज ही विरोध प्रदर्शन करते हैं, सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरते हैं। यानी कहा जा सकता है कि जो सख्ती हाईकमान ने की है वो कांग्रेस में अब साफ तौर पे नजर आने लगी है। जब से दिल्ली में भूपेश बघेल यानी कि जिनको पंजाब का प्रभारी लगाया गया है, तब से कांग्रेस को ये सख्त आदेश दिए गए थे और निर्देश जारी किए गए थे दिल्ली से कि इस बार जो है कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ चलना है। कारण क्या है कि कांग्रेस से जब पीछे विशेष सेशन जो सत्र जो बुलाया गया था उस समय कांग्रेस बटी बटी नजर आई और कांग्रेस की तलखियाँ किसी से छुपी नहीं थी। कांग्रेस अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग विषयों को लेकर सबकी अलग अलग बयानबाजी थी। अब भूपेश बघेल के सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा था कि किस तरीके से कांग्रेस को एक साथ एक मंच पर लेकर आए। अब ऐसे में बैठकों का दौर चला, नवजोत सिंह सिद्धू इस बैठक से तो दूरी बनाए रखे। आइए आपको सुनाते हैं सबसे पहले कि प्रगट सिंह ने क्या कहा कि वो लगातार राब्ता में तो हैं लेकिन वो जल्द 2027 के चुनावों के प्रचार में वो दिख सकते हैं, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कशमकश है क्योंकि वो दूरी है जो बनाए रखे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए, हाईकमान ने साफ तौर पर ये सख्त निर्देश दिए थे जो बैठक हुई थी कि अगर इस बार कांग्रेस अपना विपक्ष की भूमिका नहीं निभाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है आने वाले समय में की जाएगी। तो आज का बजट सत्र का पहला दिन था। कांग्रेस ने अपना एक कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको निभाने की कोशिश की, लेकिन सवाल अब यहाँ ये खड़ा होता है कि जो कांग्रेस तलखियों को लेकर, आपसी मनमुटाव को लेकर अलग अलग थी, क्या इस बार
कांग्रेस एक मंच पर देखेगी, क्योंकि आज तो पहला दिन था, लेकिन अब आने वाले दिनों में किस तरीके से कांग्रेस का रहेगा, सबकी नज़र इस पर रहेगी। और हाईकमान यानी भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि इस बार कांग्रेस को एक मंच पर आकर एक साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को किन किन मुद्दों पे करना, क्योंकि 3 साल पूरे होने के बाद जहां भाजपा ने सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट किए थे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आई, जिसका असर ये हुआ कि हाईकमान ने बोला तुम विपक्ष में होते हुए भी ये चीज़ नहीं कर सके। इसके बाद एक बैठक हुई और अब सख्ती जरूर कांग्रेस पे कर दी गई है। अब देखना रहेगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरीके से करती है, क्योंकि 2027 के चुनाव है। पंजाब की राजनीति में एक अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है, अलग अलग विषयों को लेकर इस समय अलग ही राजनीति को जो रूप देखने को मिल रहे हैं। अब इन मौक़ों को कौन सी पार्टी 2027 में इनकाश करती है सत्ता में आने के लिए, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। लेकिन सबकी नज़र इस पर रहेगी कि आखिर इस बार कांग्रेस का रुख कैसा रहता है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।